today's topic is a little bit different, and I hope everyone knows this topic. That is equivalent rational number, or we can say fractions. That is equivalent fractions. See, this term is very useful. That is equivalent. Equivalent means they are equal, but see, equal का मतलब कैसा होता है? See, they are in proportion. They are in proportion. तो equivalent को हम proportion में भी count कर सकते हैं. So today we will see the equivalent number. So these are the equivalent rational numbers. So which are the equivalent rational numbers? So I will just give you some examples for that one. See, suppose I just write here 4 by 11. I just write here 4 by 11. So can I write this 4 by 11 like this? 4 by 11, and I just multiply numerator and the denominator by the same number. That is suppose 3. So the answer will become 4 3s are 12, and here 11 3s are 33. Okay. So if you observe that 4 by 11, and you can observe, if you observe that 12 by 33, you can see that here they are in proportion. So these two fractions, or we can say these two rational numbers, तो हम इसको fractions भी बोल सकते हैं, and we can call it a rational number. ठीक है? So these two rational numbers are equivalent rational number. Therefore 4 by 11. अब आप बोलोगे सर ये तो इक्वल आपने दे दिया है. Why it is equal? See, these are equivalent. ये होता है equivalent. तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉमा दे देता हूँ. Just right here comma. So 4 by 11 and 12 by 33 are equivalent rational number. Rational number. अब इसमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्यों बोला है? क्योंकि सी इसका जो स्मॉलेस्ट टर्म है, ठीक है, इसका जो स्मॉलेस्ट टर्म है दैट इज 4 by 11. अब 4 by, अगर आप इसको डिवाइड करोगे, सी इफ यू जस्ट ऑब्जर्व हियर, इट विल बी डिवाइडेड बाय 3. 3 4s are 12 and 3 11s are 33. So it will be again converted into 4 by 11. तो ये प्रोपोर्शन में रहता है. अब आई डोंट थिंक सो कि मैं आपको प्रोपोर्शन में और ज्यादा डिटेल में लेके जाऊँ, बिकॉज प्रोपोर्शन हमारा टॉपिक नहीं है. हमारा टॉपिक है सिर्फ इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है सिंपल टर्म में, कि वो प्रपोर्शन में अगर आ जाता है नंबर, देन वी कैन से इट्स एन इक्विवेलेंट नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर. और ऐसे कितने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकल सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर्स निकल सकते हैं. देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स. ठीक है. अगर मैं बात करूं कुछ नंबर्स की, एक और एग्जांपल देखते हैं हम. ठीक है, दिस इज एग्जांपल नंबर 1. एंड इफ यू जस्ट टॉक अबाउट द सेकंड एग्जांपल, अगर मैं बात करूं सेकंड एग्जांपल, सपोज आई जस्ट राइट हियर 2 by 5, then 4 by 10, then 6 by 15, then 8 by 20, and so on. If you observe that these all are equivalent number. ठीक है, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये सबके साथ आपको क्या मिलेंगे? इक्विवेलेंट नंबर्स मिलेंगे. इक्विवेलेंट नंबर्स की जगह हम बोलेंगे फ्रैक्शनल नंबर्स मिलेंगे. दिस ऑल आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. व्हाई? बिकॉज सी, अगर आप इसको 2 से डिवाइड करो तो 2 2s are 4, 2 5s are 10. इसको अगर आप 3 से डिवाइड करो तो 3 2s are 6, 3 5s are 15. इसको अगर आप 4 से डिवाइड करो तो 4 2s are 8, 4 5s are 20. सो आपको जो फाइनल टर्म मिलने वाला है दैट इज 2 by 5. So you will get here 2 by 5 only. See, so this 2 by 5 is the smallest number, smallest fraction of this all fractions. This 2 by 5 is the smallest rational number, or we can say smallest fraction among of these remaining fractions. तो ये सारे क्या हो गए? इक्विवेलेंट हो गए. ठीक है, दिस ऑल आर द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर. सो वी कैन सिंपली राइट दैट देयर आर, therefore we can write here, therefore there are infinite equivalent rational numbers. कितने rational numbers से? Infinite equivalent rational numbers. How many equivalent rational numbers are there? There are infinite equivalent rational numbers. ठीक है. कोई कंफ्यूजन है टॉपिक के अंदर, इक्विवेलेंट के अंदर? No, sir.
Okay, good. So we will just move forward. Sir, Yes. Yes, bolo. I didn't hear you. I did not hear you. किसने बोला है अभी सर? किसको डाउट है? Anyone have any confusion about this topic? Can I move No, forward? sir, no doubt. Good. So Sir, see, हाँ कौन है? नाम बताओ और आगे बढ़ो. sir, is it same about negative numbers also? Yes, it is same about the negative number also. So we will just take one example of the negative numbers. Okay. So I will just take one example. Example number 3. So if I just write here minus 3 upon 7. Minus 3 upon 7. If I just write here minus 3 upon 7. So can I find the equivalent number? First of all, how you can find the equivalent number? That is very simple process. If I just ask you find 3 equivalent numbers, so what you have to do? You have to simply multiply numerator and denominator by the same numbers. By same number, and that number will be chosen by you. आप कोई भी सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो और वो नंबर आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो. वन छोड़ के, वन मत करना नहीं तो ये फिर से आ जाएगा. ठीक है. सो आई विल सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट वन, दैट इज 2. आई कैन सेलेक्ट 2. तो अगर मैं 2 सेलेक्ट करता हूं तो क्या हो जाता है? 3 2 6, दैट इज माइनस 6 अपॉन 14. ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्विवेलेंट नंबर. नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द सेकंड इक्विवेलेंट नंबर. सो मैं फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा सेम नंबर से. नाउ आई कैन सेलेक्ट एनी नंबर. ठीक है, पर वन सेलेक्ट मत करना क्योंकि वो यही बन जाएगा फिर से. और जीरो मत सेलेक्ट करना क्योंकि जीरो तो ये सबके लिए जीरो हो जाएगा. ठीक है. यू कैन सेलेक्ट एनी नेगेटिव नंबर ऑल्सो. इफ आई जस्ट सेलेक्ट हियर -2. ठीक है, यहाँ पे -2 आ जाएगा. अब आप देखो, थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो, थोड़ा समझ के लो. अगर आपने न्यूमरेटर को -2 से मल्टीप्लाई किया है, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर आल्सो विद द -2. आप 2 से मत करना. -2 आपने सेलेक्ट किया है ना, so multiply numerator also -2 and multiply denominator also with -2. So minus minus will become plus. So 3 2s are 6, and here 7 2s are 14. So it will become -14. लास्ट में तो -6 upon 14 ही आया ना. Get my point? So आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रहा है? तो लास्ट में तो -6/14 ही आया. तो सेम नंबर आप नेगेटिव और पॉजिटिव मत लो. ठीक है, यू कैन सेलेक्ट द डिफरेंट नंबर. आप डिफरेंट नंबर सेलेक्ट कर सकते हो. देखो, 0 सेलेक्ट मत करना, 1 सेलेक्ट मत करना और सेम नेगेटिव पॉजिटिव नंबर सेलेक्ट करना. You can select the different one. So if you want to find out the any three equivalent rational number, you can select the any number and multiply it with the numerator and the denominator. So I just select here now 4. So 4 3s are 12. So -12 and 7 4 are 28. So this is my first equivalent rational number. This is my second equivalent rational number, and now I'm going to select find out the third one. So -3 upon 7 multiply by 5, and here also 5. So 5 3s are 15, -15, and here 5 7 5s are 35. So these are my three equivalent rational numbers. Get the point? हाँ. So Yes, sir. good. So now moving forward, अब देखो, ये तो हो गया equivalent rational number की बात. Now we are going to discuss about this the smallest fraction. अब हमें डिस्कस करना है ये जो smallest fraction हमें मिला है ना, this one. इस फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करना है. ठीक है, द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन. अब इसको थोड़ा अच्छे से समझ के लो. बहुत से बच्चे क्या हो जाते हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, हमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए. 0.01% की कंफ्यूजन नहीं चाहिए. तो ये जो स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर है, स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर है, ये जो स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर है, और यहाँ पे ये जो स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर है, these numbers are the co-prime numbers. इसको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोल सकते हैं co-prime numbers. These numbers we call a co-prime number. ये बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है को-प्राइम के अंदर, लेकिन कंफ्यूजन की कोई भी बात नहीं है. बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है. प्राइम का मतलब कौन बताएगा मुझे? Who will tell me the meaning of prime? The number which is having only two factors, one, and the number itself is called prime number. Very good. Please tell me your name. Sir, Atharva Shetty. Okay, good, Atharva. So the number having only two factors. The number having only two factors
the number having only two factors, that is 1 and itself, it's called prime number. So prime number किसको बोलते हैं? The number having only two factors, that is 1 and itself, is called prime number. एग्जाम्पल के लिए प्राइम नंबर्स के एग्जाम्पल बहुत सारे आपको मिल जाएंगे. देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ द प्राइम नंबर्स. तो सबसे पहला तो एग्जाम्पल हम ले लेंगे, दैट इज 1 इज नॉट नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. 1 मत लेना गलती से. क्यों मैंने 1 क्यों नहीं बोला? 2, 3. फर्स्ट ऑफ ऑल Sir, because it is हाँ, हाँ, its factor is 1 only. यस 1 करेक्ट. itself. 1 itself, उसका एक ही तो फैक्टर है, इसलिए तो 1 ये प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है. देखो प्राइम की डेफिनेशन क्या है? देयर आर ओनली टू फैक्टर्स. कितने फैक्टर्स होने चाहिए? 2. एक 1 और एक वो खुद, देन इट विल बी अ प्राइम. बट और कंपोजिट की डेफिनेशन क्या है? देयर आर मोर देन टू फैक्टर्स. जिसके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट हो जाता है. बट 1 ये एक ऐसा नंबर है जिसके दो फैक्टर ही नहीं है, उसका तो एक ही फैक्टर है, दैट इज 1. तो अगर एक ही फैक्टर है, so it is neither prime nor composite. Please remember this point, huh? Okay, sir. So we can write here example. We just start from the 2. So 2, 2, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 10, 11, 11, and there are 11, so 13. 11. 13, and so 13. so these all are the prime numbers. So I just write here the note point. मैं note point लिख लेता हूँ यहाँ पे. तो नोट पॉइंट में मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे 1 के बारे में. तो नोट पॉइंट क्या है? 1 is neither prime nor composite. ये प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है. ठीक है. नाउ अब ये तो प्राइम के बारे में हो गया. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द को-प्राइम नंबर. सो को-प्राइम नंबर्स क्या है? ठीक है. तो व्हाट डू यू मीन बाय अ को-प्राइम नंबर? कौन बताएंगा? The prime numbers in the series of 2. हाँ, ट्राई, वेल ट्राई. अच्छा ट्राई किया आपने. Sir, two number which have SCF as 1. टू नंबर हैविंग एचसीएफ एज 1. सी देखो को-प्राइम. अब को-प्राइम जो नंबर है, सी द को-प्राइम नंबर, ये हमेशा पेयर्स में आएगा. ठीक है. ये आपको पेयर में मिलेगा. टू नंबर हैविंग ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर. ठीक है. एचसीएफ की जगह पे हम वर्ड यूज करेंगे कॉमन फैक्टर. एचसीएफ और कॉमन फैक्टर सेम ही होता है. ठीक है. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बट हम कॉमन फैक्टर यूज करेंगे. टू नंबर्स, or we can say pair of numbers, or we can say two numbers having only 1 as a common factor, two number having 1 as a common factor, two number having only 1 as a common factor, is called co-prime number. It's called co-prime number. तो कॉमन फैक्टर कौन सा होना चाहिए? 1. ठीक है. उसका एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए 1. अब ध्यान से देखो, इफ यू जस्ट डिस्कस इन दिस एग्जांपल्स, 2 और 5 में कॉमन फैक्टर कौन सा है? सिर्फ 1 है. 4 और 11 में कॉमन फैक्टर कौन सा है? सिर्फ 1 है. 3 और 7 में कॉमन फैक्टर कौन सा है? सिर्फ 1 है. तो दीज आर द को-प्राइम नंबर्स. हम कहते हैं को-प्राइम नंबर. अंडरस्टूड? एग्जाम. और ये हमेशा पेयर में आएंगे. ठीक है. ये सिंगल आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे. इट इज ऑलवेज बी फाउंड इन द पेयर. ठीक है. तो हम इसके कुछ पेयर देख लेते हैं. एग्जाम्पल जैसे 2 and 5 आर द को-प्राइम नंबर. देन -3 Sir, 2 and 3. yes, 2 and 3 also. 3 and 7 is a co-prime number. Then 2 and 3 Sir, 5 are, and 7. of course 5 and 7 are the co-prime numbers, and so on. 13, 11 and 14 are the co-prime number, and so on. आपको बहुत सारे को-प्राइम मिल जाएंगे. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. डाउट Yes, को-प्राइम sir. में?
No doubt, sir. Sir, Yes. No doubt. sir, then what is the difference between No the doubt. co-prime numbers and twin prime numbers? Which prime numbers? Co-prime numbers and Twin. twin prime numbers. Yes, sir. ये twin prime number आपको कहाँ मिल गया? सर था ना twin prime number. देखो अब ट्विन प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर में आपको मैं एक छोटा सा डिफरेंस है वो बता देता हूँ, ठीक है? देखो हाँ था बोले तो है एक्चुअली ट्विन प्राइम नंबर, डोंट वरी मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मैं सिर्फ आपको 9th स्टैंडर्ड में आपको सही पर नहीं है, ठीक है? तो चलो देखते हैं ट्विन प्राइम नंबर। देखो को प्राइम में क्या होता है, सी केयरफुली। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है 11 एंड 14, दिख रहा है 11 एंड 14 एग्जांपल। अब इफ यू जस्ट ऑब्जर्व दिस वन, सो 14 इज अ प्राइम नंबर। 14 ये प्राइम नंबर है क्या? No, sir. Yes, No, sir. sir. No, sir. 14 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 14 के फैक्टर्स कितने हैं ना, No. देखो 14 के फैक्टर्स Yes, कितने हैं? sir. 2 into 7 है ना? तो इसके फैक्टर्स कितने हो गए? इसके फैक्टर्स हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया और 14 हो गया। तेरा 4 फैक्टर्स, सो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। लेकिन हमने 11 बट वी जस्ट सेड दैट 11 एंड 14 आर को प्राइम नंबर। हमने 11 और 14 को क्या बोल दिया? को प्राइम नंबर बोल दिया, है ना? हमने 11 और 14 को प्राइम नंबर बोल दिया। बट ट्विन प्राइम नंबर में क्या होता है, बोथ आर द प्राइम नंबर। जैसे 2 एंड 5, 2 और 5 दोनों भी प्राइम नंबर है। अब अगर दोनों भी प्राइम नंबर है, इफ बोथ आर द प्राइम नंबर, तो दोनों के तो कॉमन फैक्टर एक ही रहना चाहिए ना, दैट इज 1 ओनली। Sir means like 15 and 17. यस करेक्ट। तो उसके दोनों भी प्राइम नंबर होना चाहिए। अब को प्राइम में ऐसा कंपल्सरी नहीं कि दोनों भी प्राइम होना चाहिए, सिर्फ उसके फैक्टर्स एक ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर होना चाहिए। इट्स कॉल्ड को प्राइम नंबर। गेट द पॉइंट? Okay, sir. तो चलो आगे बढ़ते हैं। So and you have no common factors other than 1. Now we are starting some questions on it. So the number 1 question, it is visible on your you can see the question on your screen. So start करते हैं हमारा आज Yes, का sir. प्रोग्राम, दैट इज कौन बनेगा मैथमेटिशियन। So the example number 1 is in front of you, and that is, are the following statements true or false? Give reasons for your answer. आप इसमें फोन ऑफ फ्रेंड कर सकते हो, आपके इसमें लाइफ लाइन है, और यू कैन सेलेक्ट 50-50, और ऑडियंस पोल भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। No need, sir. नो नीड, वेरी नाइस। सो कौन देगा ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल Sir, नंबर। I. फर्स्ट Sir, may I understand? Sir, may I? Saksham हाँ, पहले Pandey. सक्षम, पहले Sir, नाम may बोलना, I? बाद में। हाँ, सक्षम। Sir, may I? Yes, Add the सक्षम। following statement true or false. Give reason for your answer. Every Yes. whole number is a natural number. False. This is because 0 is a whole number, but it is not a One natural second, number. we will write also false. स्पेलिंग मिस्टेक होगी, FALSE, हाँ, FALSE, False. false, because 0 is a whole number. 0 is a Is whole a number. whole number, but not a natural number. But not natural number. नेक्स्ट वन, नाम बोलो पहले। Sir, may I Sir, I Anushka? Saksham Pandey. अनुष्का। Okay, sir. Every integer is a rational number. So it's true because every integer q can be expressed in the form of p upon q, and so it is a rational number. वेरी नाइस, वेरी गुड। और इसका रीजन तो आपने बहुत बड़ा बता दिया, तो आई विल नॉट राइट दिस रीजन बिकॉज इट विल टेक सो मच टाइम, so you can write it। बोलो एक बार स्लोली बोल दो। Sir, because every integer p can be expressed in the form of p upon q, and so it is a rational number. करेक्ट। तो मैं इसको शॉर्ट में कर देता हूँ। every integer can be expressed in the form of p by q। That's well and good। थोड़ा शॉर्ट कर दिया मैंने, ठीक है? बाकी आपने जो बोला एकदम करेक्ट बोला है, और वैसे लिखना है आपको। नंबर 3,
नंबर थर्ड किसने बोला था, कौन बताएगा? False. This is because every rational number is written in the form of P upon Q, but integers are not written in the form of P upon Q. Sir, but we can write integers in P by Q format. You sir. can write integer in the form of rational number. Every integer is a rational number. That is correct. But every rational number is not an integer. ये false हो गया, समझ में आई बात? ये true हो गया. Every integer rational number हो सकता है, but every rational number ये integer नहीं हो सकता. Get this Sir, point? so what is the correct explanation? आपने बोला Sir, सही है ना? Yes, बोलो. Sir, it is false because if we take an example 4 by 5, so we can't convert it into integers, so that's Correct. why it is false. अगर आपको एग्जांपल समझ में नहीं आया ना, तो आप डायरेक्टली कोई भी एग्जांपल उठा सकते हो. जैसे एग्जांपल अभी किसने बताया आंसर मुझे? बिकॉज Sir, Sir, I Saksham Pandey. ठीक है, तो फिर कैसे आपको लिखना है इसमें? देखो, आपको सिंपल एग्जांपल्स में इस तरह लिख सकते हो, बिकॉज 4 by 5 is rational number but not integer. ये रैशनल नंबर है पर इंटीजर नहीं है. यू कैन राइट लाइक दिस. ओके, अंडरस्टूड? अब नेक्स्ट क्वेश्चन. टॉपिक पे मूव नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? दिस वन, फाइंड Find 5 five रैशनल rational. नंबर्स बिटवीन 1 and 5. अब एक बात ध्यान में लो, अब ये क्वेश्चंस के ऊपर आपको एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस है. तो यू हैव टू फाइंड 5 rational numbers between 1 and 2. Actually, there are infinite rational numbers between 1 and 2, but we have to find only 5. हमें सिर्फ 5 पूछा गया है, और ये सॉल्व करने की दो मेथड्स हैं. We can approach this problem in at least 2 ways. हम इसको दो वे से सॉल्व कर सकते हैं. तो पहले हम देखेंगे मेथड 1, M1. ठीक है, और Sir, your voice is breaking. हेलो. It is tutti. हाँ, टूटिंग. ओके, हेलो. sir, Sir, it it is is sir, Sir, it is clear. Sir, it is clear. हाँ, Sir, you it just is check- clear. हाँ, जिसको मेरी आवाज वॉइस ब्रेक हो रही है, वो प्लीज चेक करो अपना कनेक्शन. So now see here. So there are two methods. So I just write here the method one. Method one is very simple but very lengthy process is there. So how you can find the 5 rational numbers between 1 and 2? So first of all, write down the rational number here. Find 5 rational number between 1 and 2. Therefore, how we can find? सबसे पहले आपको क्या करना है? 1 plus 2 divided by 2. आपको दोनों की एडिशन करना है और डिवाइडेड by 2 कर देना है. So that will be 3 by 2. This is your first rational number. सेकंड में क्या करना है आपको? अब देखो, जैसे ही आपको फर्स्ट मिल गया, आप ये लिख लो 1, 3 by 2, and 2. So these are the 3 rational numbers. ठीक है, और ये आपको मिल गया एक रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2. नाउ वी हैव टू फाइंड द नेक्स्ट सेकंड नंबर. सो सेकंड नंबर में आप कोई भी दो ले लो. सपोज मैं ये एक और ये एक ले लेता हूँ. तो फिर से इसका सेम प्रोसेस करना है. 1 plus 3 by 2 divided by 2. बहुत सिंपल है. आपको फर्स्ट और कोई भी दो के एडिशन करना है, डिवाइडेड बाय 2 कर देना है. तो इसको एडिशन करो, 2 1s are 2. So it will be 2 plus 3 by 2 divided by 2. And that is 2 plus 3, 5 by 2. So it will be a 5 by 4 we can write. ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया रैशनल नंबर नेक्स्ट वाले? 1, then 5 by 4 and then 3 by 2. ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे. I just find out the rational number between 1 and 3 upon 2. तो अगर इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर फाइंड कर रहा था मैं, तो इन दोनों के बीच में ही लिखूंगा ना. गेटिंग माई पॉइंट? yes sir. ठीक है, अब सेम, अब हमें नहीं क्या, इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर फाइंड करना है, 3 by 2 और 2 के बीच का. तो कैसे करेंगे? सेम प्रोसेस है, 3 by 2 plus 2 divided by 2. तो 3 1s are 3 plus 2 2s are 4, 2 2s are 4 और divided by 2, again divided by 2. So 4 plus 3 7, so 7 by 4.
अब मैंने किसके दोनों के बीच का फाइंड किया था, 3/2 और 2 के बीच का, तो इन दोनों के बीच में लिखूंगा 1 5/4 3/2 एंड देन 7/4 एंड देन 2। देखो ना, अब मैंने इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर फाइंड किया था, तो इन दोनों के बीच में लिखूंगा। तो कितने मिल गए मुझे, 1 2 3, अभी भी 2 बाकी है, ठीक है। सो अगेन वी कैन फाइंड आउट द रैशनल नंबर बिटवीन 5/4 एंड 3/2। कॉन्जिक्यूटिव ही लेना है आपको, ठीक है, ये दोनों ही लेना है। आप 5/4 और 7/4 मत लेना, क्योंकि अगर आप 5/4 7/4 लोगे तो आपका कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। तो कंफ्यूजन करने से अच्छा जो सीक्वेंस हमें दिया हुआ है वही सीक्वेंस लेके कोई दो कॉन्जिक्यूटिव ले लेना। तो मैं 5/4 और 3/2 लेता हूँ। तो देयरफॉर हियर वी कैन राइट हियर, तो ये हमारा फर्स्ट नंबर था, ये हमारा सेकंड नंबर था, ये हमारा थर्ड नंबर था। नाउ वी आर फाइंडिंग द फोर्थ वन। तो फिर से 5/4 प्लस 3/2 एंड कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2, ये मत भूलना। हाँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 2 10, 10 प्लस 4 3 12 by 8 divided by 2. So 10 plus 12 that is 22 divided by 16. इसको सॉल्व मत करते बैठना, नहीं तो आप इसको फ्रैक्शन में करोगे कन्वर्ट और स्मॉल करोगे, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जितना बोला है उतना ही करो, ठीक है। 5/4 then 22/16 then 3/2 then 7/4 and then 2, कितने हो गए 1 2 3 4, ये 12 नहीं बना, ये 2 है। समझ में आ रहा है ना? Yes, Yes. sir. करेक्ट। अब तो लास्ट वन, अब लास्ट देखते हैं नंबर 5, तो फिफ्थ वन। तो फिफ्थ वन देख लेंगे हम, इन दोनों के बीच का 3/2 एंड 7/4 के बीच का नंबर। तो दैट विल बी अ 3/2 प्लस 7/4 डिवाइडेड बाय 2। So that will be a 4 3s are 12, 7 2s are 14 divided by 8 and divided by 2. So it will be look like 26/16, and we get here therefore 1, then 5/4, then 22/16, then 3/2, then 26/16, then 7/4, and then finally 2. So now here we get 5 rational number between these two, 1 and 2. So this is our first one, ये हमारा फर्स्ट था, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ। एनी डाउट किसी को? No doubt, sir. मेथड वन में कोई डाउट है? गुड। सो मेथड वन बहुत सिंपल थी, वेरी नाइस। तो मेथड वन बहुत सिंपल थी लेकिन बहुत ज्यादा लेंदी थी। नाउ विद द सेम क्वेश्चन वी विल जस्ट मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड एंड वी विल Sir, यस sir, if we take 1 as 1/1 and 2 as 2/1 and then multiply both of them by 10, then we can also write, no? वही तो हमारी मेथड नंबर 2 है। मैंने क्या बोला, इसको हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, तो फिर यहाँ पे तो हमारी मेथड 1 ही थी, आपको एडिशन करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है, ठीक है। बट इससे अच्छी मेथड है नंबर 2, जो कि आप भी आपने बताई। मेथड 2 Sir, Sir, then third method is also there. व्हिच वन? हेलो हाँ बोलो। हेलो। सो सी यहाँ पे नहीं क्या, मैं मेथड 2 बता रहा हूँ आपको। आई एम Sir, ऑडिबल? हाँ बोलो। sir, can't we write like this? If we require 5 rational number, then we will take 1/6 and multiply 1/6 and 2/6 and multiplying 2 with 6. Then we can find out 5 rational number between that. सी एक्चुअली देखो बात क्या है यहाँ पे, देर आर सो मेनी मेथड, ठीक है, बट कम से कम 2 मेथड है, कम से कम देखो, एटलीस्ट 2 मेथड बोला इन्होंने एट मोस्ट नहीं बोला है, ठीक है। वी कैन अप्रोच दिस प्रॉब्लम इन एटलीस्ट 2 मेथड, हम कम से कम 2 मेथड से अप्रोच कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा नहीं बोली गई है, ज्यादा से ज्यादा कितनी मेथड आप यूज कर सकते हो। लेकिन हमें जो एनसीईआरटी में दी हुई है ना, वो 2 मेथड दी हुई है। पहली वाली ये मेथड जो मैंने आपको बताया, दोनों की एडिशन करो, डिवाइडेड बाय 2 करो, ठीक है। और सेकंड जो मेथड है वो अभी देखो बहुत सिंपल है। सेकंड मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, आप 1/1 और 2/1 लेके भी कर सकते हो सॉल्व। देखो यहाँ पे बात एक ही है, बात अलग अलग नहीं है, दोनों ने भी सेम चीज बोली है,
आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं. हाउ मेनी रैशनल नंबर्स वी हैव टू फाइंड? 5 रैशनल नंबर्स वी हैव टू फाइंड. सो जब भी आपको 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, 5 रैशनल नंबर्स. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है 5 प्लस 1. जितने फाइंड करने हैं उसमें 1 ऐड कर दो, so it will become a 6. Now just multiply numerator and denominator by 6. अब आपको 1 मल्टीप्लाई बाय 6 और इसी के जो डिनोमिनेटर में अब कुछ नहीं, वो तो 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 करना है. एंड जो आपका सेकंड नंबर है 2 by 6 to the number 1 and 2. अब इसके डिनोमिनेटर में 1 ले लो, इसके डिनोमिनेटर में 1 ले लो, क्योंकि 1 तो सबके डिनोमिनेटर रहता है. देखो बहुत सिंपल मेथड है, क्या करना है आपको, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखना है. पहली स्टेप क्या लिखोगे आप, 5 रैशनल नंबर्स वी हैव टू फाइंड, so equals to 5 plus 1 6. just take 6 now. Okay, multiply numerator and denominator by 6 to the numbers 1 by 1 and 2 by 1. जो भी नंबर दिया है उसके डिनोमिनेटर में 1 ले लो, ठीक है, और इन दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो, तो मल्टीप्लाई बाय 6 और इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 6. नाउ सी केयरफुली, this number will become 6 upon 6, therefore 6 upon 6, and ये नंबर जो बन जाएगा ये बनेगा 6 to the 12, 12 upon 6. If you observe carefully, denominator same है, then we can simply write here 6 upon 6, comma 7 upon 6, then 8 upon 6, then 9 upon 6, then 10 upon 6, and then 11 upon 6, and then finally 12 upon 6. इसलिए मैंने आपको पहले ही इक्विवेलेंट का मतलब बता दिया था. इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, यही होता है. 6 upon 6 बोले तो क्या, 1. 12 upon 6 बोले तो क्या, 2. These are the equivalent numbers. और if you just see here carefully, you get here 5 rational numbers. See 1, 2, 3, 4, 5. 5 rational numbers you get here. Understand this method? This is a very simple method and very short method. आपको यही मेथड यूज करनी है मैक्सिमम टाइम पे. अंडरस्टूड बाय एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो चलो अब इसमें एक नोट पॉइंट देख लेते हैं हम. देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स दैट वी ऑलरेडी नो. ये तो कुछ नई बात नहीं, हमें तो पता है कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली नंबर्स होते हैं. चलो अब हमारा यहाँ पे एग्जांपल्स कंप्लीट हुए हैं. अब क्या, नाउ व्हाट टू डू? Sir, यस, sir, also we can take 1 as 1.0 and 2 as 2.0 also we can write यस यस by यू कैन decimal. राइट, यस यू कैन राइट इन डेसिमल. बट उन्होंने डेसिमल में पूछा है क्या, उन्होंने क्या पूछा है, रैशनल नंबर फाइंड करो, एंड रैशनल नंबर वी विल डिनोटेड बाय p by q फॉर्म. रिमेंबर दैट पॉइंट. Yes, sir. ये अगर बोलते डेसिमल नंबर्स फाइंड करो तो हम डेसिमल में लिखते हैं. Okay, नाउ sir. अब क्या, एग्जांपल्स तो हो चुके हैं. नाउ व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू. Sir, अब यहाँ, exercise. yes, correct, very nice. Now it's time to do the exercise, and that is your homework. Exercise 1.1 is your homework. Thank you, But sir. but not only the exercise 1.1 बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा और इंक्रीज मैंने कर दिया है. यहाँ पे exercise 1.1 के साथ में मैंने आपके लिए एक एक्स्ट्रा एक्सरसाइज भी लाई है from Ratna Sagar. You have to do this one also. This is also your homework. So how much? These are the 4 examples. Very little bit examples. After that, these are the 8 examples. But इतने सेट में नहीं होने वाला, 9 स्टैंडर्ड की बात है ना. तो एक छोटा सा आपके लिए एग्जाम भी है, एक स्मॉल टेस्ट है, टॉपिक टेस्ट. और ये जो टॉपिक टेस्ट है ये वाली है. बट जस्ट सॉल्व दिस टेस्ट आल्सो. स्मॉल टेस्ट है, 11 क्वेश्चन है ओनली, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. टॉपिक टेस्ट है, नॉट अ चैप्टर टेस्ट.